إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرما کر کے یوں ہی ہمیں بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے ہمارے لیے ایک مقصد متعین کر دیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ آج کاروباری دنیا ہے، ہر شخص اپنا نفع و نقصان ہر چیز میں نکال لیا کرتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے جو عبادت کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیوں اس کی عبادت کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، حتیٰ کہ آپ عبادت کی کتنی بھی قسموں کو دیکھ لیں، عبادت کی تمام قسموں کو اگر دیکھیں، چاہے روزہ رکھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، الغرض عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کو ہم اس لیے بجا لاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہو سکے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے، اور تقوی کی مختلف تعریفات ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اور
अपने रब के बीच में अपने और अपने रब की नाराजगी और उसके अजाब के बीच में एक बचाव का सामान कर ले, एक बचाव और एक आड़ कर ले। और ये होगा कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अवामिर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अहकामात हैं, उन्हें बजा ला करके। और दूसरा काम यह है कि जिन चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया है, उन चीजों से रुक करके एक बंदा तकवा शिआर बन सकता है, परहेजगार बन सकता है। हाज़रीन जुमा, अगर हम तकवे के फवायद को देखें तो बेशुमार फवायद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया और इसकी अहमियत कुरान पाक में यूं ही तकवा 250 से ज्यादा मर्तबा ये कलिमा इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक के अंदर। जाहिर सी बात है, इसकी इसी अहमियत के पेश नजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इस पर इतना ज्यादा जोर दिया है। तो जब हम तकवा अपने अंदर पैदा करते हैं और हम तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ हमारे अंदर पैदा होता है, तो उसके बहुत सारे फवायद हासिल होते हैं। और उन्हीं में से एक फायदा यह है कि इंसान की रिज्क में कुशादगी पैदा हो जाती है, उसके मुआमलात में तंगियां दूर हो जाती हैं और इंसान के मुआमलात आसान हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, उसके अवामिर को बजा लाता है और उसके मनहियात से रुक जाता है, तो उसका अंजाम क्या होता है, उसके साथ मामला कैसा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मामले में आसानी पैदा फरमा देता है और उसके रिस्क में ऐसी बरकत अता करता है, उसको ऐसी जगहों से रोजी देता है जिन जगहों का उसको गुमान भी नहीं था, जिन जगहों को उसने अपने कभी गुमान में भी नहीं लाया था, इसी जगहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे रिस्क देने लगता है। तो ये तकवा है जिसका फायदा होता है कि हमारे मामलात आसान हो जाते हैं। अगर हम किसी मुश्किल में फंसे हैं, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुश्किल से निकलने के लिए हमें मखरज, हमें एक एग्जिट अता कर देता है जिससे हम निकल सकते हैं। तो तकवे का एक फायदा यह भी है। और इसी तरह से मेरे भाइयों, तकवे का फायदा यह है कि एक इंसान, हम में से कोई भी इंसान जब थोड़ा सा बड़ा होता है, अपनी उम्र के एक अगले पायदान पर कदम रखता है, तो वह महसूस करता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे अंदर सूझबूझ की सलाहियत पैदा हो गई है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने अंदर ये सलाहियत की कमी महसूस करता हो, उसके अंदर ऐसी सलाहियत ना हो जिससे वो हक व बातिल में तमीज कर पाए, आप में से अगर कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके अंदर इस सलाहियत की कमी है, तो उन्हें चाहिए कि वो तकवा इख्तियार करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें फुरकान अता कर देगा। ये फुरकान क्या होता है? इस फुरकान को कहते हैं, ये ऐसी सलाहियत होती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान के अंदर पैदा करता है और इस सलाहियत के जरिए से इंसान हक और बातिल के अंदर फर्क पहचान सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तकवा इख्तियार करने की बरकत होती है कि एक इंसान बहुत जल्द हक और बातिल में फर्क पहचान लेता है। और इसी तरह से तकवे का एक फायदा यह है कि वह युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को बख्श देता है, तुम्हारे सय्यिआत को मुआफ फरमा देता है। तो तकवा इख्तियार करने का एक फायदा यह भी है। हम तलबा हैं, हम वो लोग हैं जिनका ताल्लुक इल्म हासिल करने से है, इल्म से जुड़े हुए लोग हैं। हम में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे तलबा ये शिकायत करते रहते हैं, सबक नहीं याद होता है, इल्म के हुसूल में मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां आती रहती हैं। मेरे भाइयों, आपकी इन परेशानियों का एक इलाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इल्म सिखाएगा और इल्म नाफिआ से मुज़य्यन फरमा देगा। लिहाजा जो लोग इल्म के हुसूल में कुछ कमी महसूस करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो तकवे में और आगे बढ़ें और उनके अंदर और तकवा पैदा हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तकवे की बरकत से उनके इल्म में बरकत अता फरमा देगा। इसी तरह से वो लोग जो समझते हैं कि हमारे पास अजर व सवाब की कमी है, हमारे पास नेकियों की कमी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नेकियों को
बढ़ा देगा और उन्हें अजर अजीम अता कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहु अजरा। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को तो माफ करता ही है और उसके साथ ही साथ उसको अजर जजील अता करता है, उसके अजर सवाब को बढ़ा दिया करता है। मेरे भाइयों, इसी तरह से हम हमेशा इस किस्म की शिकायतें करते रहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ फला किस्म की साजिश हो रही है, दुश्मनों की चाल है और ये है। अगर आप चाहते हैं कि हकीकत में आपके खिलाफ साजिश हुई है और कुफ्फार ने आपके खिलाफ चाल चल दिया है तो आप तकवा इख्तियार करें, आप तकवा इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। अगर तुम सब्र से काम लो, अगर तुम डटे रहो, वो तत्तकू और तकवा इख्तियार करते रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तो उनकी चालें, उनके मकरो फरेब तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि दुश्मन आपके खिलाफ चाल चल रहा है, कुफ्फार आपके खिलाफ चाल चल रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर तकवा इख्तियार करें, सब्र पैदा करें। इंशाअल्लाह दुश्मन की चालें आपका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। इसी तरह से हम में से जो लोग चाहते हैं कि जन्नत में दाखिला हो जाए, और जन्नत में दाखिला क्या है कि जो शख्स जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जन्नत की नेमतों में पहुंच गया, उसे असल कामयाबी हासिल हो जाती है। तो उसे चाहिए कि वो तकवा इख्तियार करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून। जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं वो जन्नतों में होंगे, वो चश्मों के दरमियान होंगे। और इसी तरह से जहन्नम से निजात का भी सिर्फ और सिर्फ इलाज यही है, जहन्नम से निजात का एक ही सबब है और वो ये है कि हम अपने अंदर तकवा इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सुम्मा नुनज्जिल लदीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फीहा जिथिया, कि हम ऐसे लोगों को बचा लेंगे, ऐसे लोगों को निजात अता कर देंगे जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है। और इसी तरह से मेरे भाइयों, खुतबे जुमा के अंदर जो 3 आयतें पढ़ी जाती हैं, हर किस्म के खुतबे में पढ़ी जाती हैं, चाहे वो निकाह का खुतबा हो या किसी और हाजत के लिए खुतबा दिया जाए, उसमें जो 3 आयतें पढ़ी जाती हैं, उन 3 आयतों में आखिर शुरुआत किस बात से होती है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। इन तमाम आयतों की शुरुआत इस बात से होती है कि तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे उमूर को दुरुस्त कर देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम, कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम तकवा इख्तियार करो और सीधी और दुरुस्त बात कहा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे उमूर को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे मुआमलात को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। इसी तरह से वो लोग जो चाहते हैं कि जिंदगी में उन्हें कोई खौफ लाहिक ना हो, जिंदगी में उन्हें कोई गम लाहिक ना हो, ना तो उन्हें कोई अपने मुस्तकबिल का कोई खौफ हो, ना ही उन्हें किसी अपने माजी का कोई गम हो, और उनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के औलिया की सिफत पैदा हो जाए कि वो अल्लाह के औलिया कहलाएं, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो लोग अल्लाह के औलिया हैं, जो लोग अल्लाह के दोस्त हैं, आप अगर अल्लाह का वली बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह का सबसे मुकर्रब बंदा बन जाए, तो आपको तकवा इख्तियार करना होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने औलिया के बारे में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो लोग अल्लाह के दोस्त हैं, जो लोग अल्लाह के औलिया हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो उनके ऊपर कोई खौफ होगा, ना ही कोई गम होगा। और वो ये होंगे कौन? फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। इनकी 2 सिफत है। इनकी पहली सिफत यह है कि ये अहले ईमान होंगे, ये ईमान से मुज़य्यन होंगे, और दूसरी सिफत यह है कि व कानू यत्तकून, ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करेंगे। यह आयत करीमा बताती है कि हमने सबसे बड़ा अल्लाह का वली वो है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा पाया जाता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत पाई जाती हो। इसी तरह से मेरे भाइयों, तकवे का फायदा एक ये होता है कि इंसान के अमाल कबूल कर लिए जाते हैं। सलफ सालिहीन में से बाज से ये मनकूल है कि वो कहते थे कि अगर इस दुनिया के अंदर मेरे किसी दीनी अमल के बारे में खबर दे दी जाए कि वो अमल कबूल कर लिया गया है, तो मैं फौरन मौत की तमन्ना कर लूं।
क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक अमाल तो मुत्तक़ियों के कबूल करता है, और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मेरा कोई अमल कबूल हुआ है, मैं इस दुनिया से जाने की तैयारी करूंगा। तो ये तकवा जो हमारे अमल की कबूलियत के लिए शर्त है, जरूरी है कि हम अपने अंदर तकवा पैदा करें ताकि हमारे अमाल कबूल हो सकें। और इसी तरह से मेरे भाइयों, ये जो हमारे अंदर इनफरादी नाहिए से कुछ तब्दीलियां आती हैं, लेकिन अगर हम तकवा इख्तियार करें तो पूरी सोसाइटी पर, पूरी कौम पर, पूरे शहर पर, पूरे समाज पर इसका असर पड़ सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, अगर बस्ती वाले ईमान ले आए और तकवा इख्तियार करें, लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, तो हम इनके ऊपर आसमान से बरकतें नाजिल फरमाएंगे, बरकतों के दहाने खोल देंगे आसमानों से और जमीन से। तो ये होता है तकवे का वो फायदा जो एक इनफरादी, एक किसी इंडिविजुअल शख्स तक हासिल नहीं होता, बल्कि उसका फायदा पूरी सोसाइटी, पूरे मुआशरे और पूरे कौम को हासिल होता है। तो वो कौमें जो तकवा शिआर होती हैं, जिनके अंदर तकवा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकतें उनके ऊपर नाजिल होती हैं। जब हम में से कोई भी शख्स जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हो, चाहे वो तन्हाई में हो, चाहे वो महफिल में हो, चाहे वो खलवत में हो, चाहे वो जलवत में हो, जब कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना शुरू करता है तो उसके अंदर एक तब्दीली पैदा होती है। वो ये नहीं देखता कि मैं लोगों के मजमे में हूं, मैं तब डरना शुरू करूं, लोग मुझे देख रहे हैं तब मैं तकवा शिआर बन जाऊं, या मैं तन्हाई में हूं तब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरूं। जो शख्स मुत्तकी होता है वो चाहे जहां पर हो, चाहे खलवत में हो, चाहे जलवत में हो, हर जगह वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है। तो ऐसा शख्स जो मुत्तकी होता है वो हकीकी मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुखलिस होता है। और तकवे के फवायद, अगर आप दुनियावी नाहिए से तकवे के फवायद देखेंगे तो तकवे का फायदा यह है कि आज दुनिया अगर जराइम से पाक है, आज दुनिया में लोग जराइम से दूर हैं, तो ये तकवे ही की बरकत है कि लोग जुर्म से दूर हैं। दुनिया के वो कौन से मकामात हैं जहां पर दुनिया की सारी पुलिस पहुंच चुकी है, दुनिया के वो कौन से मकामात हैं जहां लोगों के सारे कैमरे पहुंच चुके हैं, दुनिया के वो कौन से मकामात हैं जहां दुनिया का इंटेलिजेंस पहुंच चुका है। बहुत सारे मकामात ऐसे हैं, इंसान अपना घर बंद करता है और गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है, लेकिन उसे अगर कोई चीज रोकती है तो वो कौन सी चीज होती है? वो उसके दिल में अल्लाह का तकवा होता है, अल्लाह का खौफ होता है जो उसे गुनाह करने से रोकता है। इंसान बंद कोठरी में बंद होता है, उसे गुनाह करने का मौका मिल रहा होता है, लेकिन उसे कौन सी चीज रोक रही होती है? यही तकवा है, यही इस्लाम की हकीकी स्पिरिट है, यही इस्लाम की हकीकी रूह है। अगर इसको हमने फौत कर दिया तो हमने इस्लाम की हकीकी स्पिरिट को, हमने इस्लाम की हकीकी रूह को खत्म कर दिया। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर तकवा और इलाहियत पैदा करें। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने अंदर पैदा हो जाना ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां एक इंसान खड़े होने का खौफ अपने अंदर पैदा कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐसे शख्स के लिए एक एक जन्नत नहीं, बल्कि ऐसे शख्स के लिए दो दो जन्नतें होंगी। फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डरता है, उसे डर लगता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का सामना करने पर, तो ऐसे शख्स के लिए दो दो जन्नतें होंगी। इसी तरह से हम कामयाबी चाहते हैं, कामरानी चाहते हैं, तो हमें तकवा इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, बेशक मोमिनों के लिए, बेशक मुत्तकियों के लिए कामयाबी है। और एक जगह फरमाया वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, हो सकता है कि तुम फलाह पा जाओ, हो सकता है तुम कामयाब हो, कामरान हो जाओ। तो फौजो फलाह की जमानत छुपी हुई है तकवे के अंदर। और इसी तरह से अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मईयत उसे हासिल हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मईयत, चाहे वो मईयत आम्मा जो तमाम इंसानों को हासिल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मईयत खासा होती है, जो उसको उसके खास बंदों को हासिल होती है, अगर कोई शख्स इसका हकदार बनना चाहता है
तो उसे तकवा शिआर बनना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के साथ है जो तकवा इख्तियार करते हैं, वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और ऐसे लोग एहसान करने वाले होते हैं। इसी तरह से अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का हुसूल चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हमें हासिल हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करने लग जाए, तब भी तकवा इख्तियार करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तकवा शिआर लोगों को पसंद फरमाता है। तो अगर किसी शख्स से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करने लग जाए तो क्या मामूली बात होगी। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का दम भरते रहते हैं और इश्क़ रसूल का दम भरते रहते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में कुछ लोग अपने आप को बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी आपने कोशिश किया कि अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करता है? ये वो मंजिल है जिसे हासिल हो जाए उसका क्या कहना। तो ये वो मंजिल है जिसे हासिल होती है, उन्हें हम तकवा शिआर कहते हैं, मुत्तकी कहते हैं, परहेजगार कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला तकवा शिआर लोगों को, मुत्तकियों को पसंद फरमाता है, उनसे मोहब्बत करता है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करने लगता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में उसका क्या हाल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी शख्स से मोहब्बत करने लगता है तो फनादा जिब्रील, वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आवाज देता है, हजरत जिब्रील को पुकार के कहता है कि जिब्रील, मैंने फला शख्स से मोहब्बत कर ली है, तू भी उससे मोहब्बत कर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं और हजरत जिब्रील तमाम आसमान के बाशिंदों में ये आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फला शख्स से मोहब्बत की है, तुम लोग भी उससे मोहब्बत करने लग जाओ। और आसमान के तमाम फरिश्ते, तमाम लोग उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद दुनिया में निदा दी जाती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वयुदउ लहुल कबूल फिल अर्द, और जमीन के चप्पे चप्पे में उस शख्स के लिए मोहब्बत, उस शख्स के लिए मकबूलियत पैदा कर दी जाती है। तो ये होता है कि एक इंसान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हासिल कर ले, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करने लग जाए, तो चाहे जमीन का कोई चप्पा चप्पा हो, चाहे आसमान का चप्पा चप्पा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे उस शख्स से मोहब्बत करने लग जाते हैं। ये होती है मकबूलियत का राज। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपको मकबूलियत हासिल हो, लोग आपको पसंद करें, तो खुदारा आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकवे से ये चीज हासिल हो सकती है। इसी तरह से मेरे भाइयों, अगर आप किसी मसले में फंसे हैं, आप हक पर हैं और आप चाहते हैं कि अंजाम कार आपके लिए हो, फैसला आपके लिए हो, तो इसके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आक़िबत और अंजाम हमेशा मुत्तकियों के हक में होता है। अगर आप हक पर हैं, शुरुआत में आपके लिए कोई परेशानी आ सकती है, कोई कठिनाई आ सकती है, लेकिन अंजाम कार के लिहाज से हमेशा मुत्तकियों की जीत होती है। तो इसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये तकवा, ये अगर किसी को हासिल हो जाए तो उसकी दुनिया बदल जाती है। और ये तकवा, ये इस्लाम की ये हकीकी स्पिरिट इस नाहिए से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया किराम इस दुनिया में भेजे गए, उन सब की तालीमात में तकवा हमेशा सरे फहरिस्त रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह, कि हमने उन लोगों को जिनको हमने किताब दी है, नसीहत कर दी है, हमने उनको वसीयत कर दी है तुमसे पहले, और तुम्हें भी वसीयत कर रहे हैं अन इत्तक़ुल्लाह, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करो। सूरत अश-शुअरा जो लोग जानते हैं, सूरत अश-शुअरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन जा बजा अंबिया किराम की ज़बानी उनके अक़वाल की नकल करता है और उनके अक़वाल के अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ज़बानी इरशाद फरमाता है अन इत्तक़ुल्लाह, कि वइज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूद अला तत्तक़ुल्लाह, कि और जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, और इसी तरह से दूसरी जगह पे इरशाद फरमाया वइज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूह अला तत्तक़ुल्लाह वइज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिह अला तत्तक़ुल्लाह, कि जब हजरत सालिह ने, हजरत हूद ने, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौमों से कहा कि क्या तुम तकवा इख्तियार नहीं करोगे। यह आयत करीमा
یہ آیت مبارکات یہ بتاتی ہیں کہ تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کو ہمیشہ تقوی پر ابھارتے تھے اور تقوی کی دعوت دیا کرتے تھے. تو تمام انبیاء کرام کی دعوت کا محور یہ تقوی رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کریں, اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں. یہی ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. ایک مسلمان جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, آج ہم ایک سفر پر ہیں اور اس سفر کے بعد ہماری منزل قیامت ہے. ہم اس سفر میں ہم اپنے ساتھ اگر کچھ توشہ رکھنا چاہیں, ہم اس سفر کے لیے اگر کچھ سامان سفر رکھنا چاہیں تو سب سے بہتر سامان سفر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, کہ تم لوگ اپنے اس سفر کے لیے توشہ رکھ لیا کرو, سامان سفر رکھ لیا کرو, کچھ خرچ رکھ لیا کرو. اور فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اس سفر کے لیے سب سے بہتر توشہ اور سب سے بہتر سامان سفر تقوی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم حاضر ہوں تو اللہ رب العالمین نے جیسے دنیا میں ہمیں تقوی کے مختلف فوائد ہمیں بتائے ہیں, اس دنیا میں ہم نے تقوی سے مختلف فوائد حاصل کیے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ہمیں مختلف قسم کے تقوی کے فوائد سے مستفید فرمائے. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اور اخیر میں سب سے پہلے اپنے نفس کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں. آپ تمام حاضرین کو تقوی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں مسلمان کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں, ستائے جا رہے ہیں, تو اللہ رب العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما دے. اللہ رب العالمین ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں تو انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے. اے اللہ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, ایمان و اسلام پر رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.